very relevant concept in these days, because there has been some changes also recently. There have been some changes in FMEA, so it is very relevant to say discuss about what is FMEA and what have been the changes which have been done in FMEA. Before we start the formal proceedings, I would like to thank our sponsors for the today's event, Mrs. Sangeeta Steel Corporation, Mr. Sanjay Bhatia. He is our ever dependable say associate. Whenever we need any kind of support for any conducting any programs, seminars, and it is, especially related to Kaizen competition or any such event which is beneficial for the engineering industries. So he is our Sangeeta Steel Corporation company is our ever dependable sponsor and say supporter for this. Recently, they have supported us at technical center also in a big way in setting up of the spectroscope also over there. So we are thankful to Sangeeta Steel Corporation for their cooperation in conducting this event. So as far as FME is concerned, this is basically a tool which is which we use in our quality management system IATF 1694. I go into the details of IATF 16949 quality management system, but since there is a correlation between it is a part of core tool of IATF 16949. So just a brief about what is expected through FMEA in IATF 16949. I would like to throw light for 2-3 minutes on that part. Mr. Robin, can we start? Shall it's okay. So, as far as FMEA is concerned, it is one of the core tools which we use in IATF 16949 quality management system. Basically, IATF 16949 quality management system is an advanced quality management system. Then ISO 9000, which is a basic quality management system, and it is applicable to mainly to auto sector. Hello, I would request you to mute, all to mute. See, basically, the FMEA is a core tool of IATF 16949, which is especially applicable on automotive components manufacturing units. See, as far as standard is concerned, IATF 16949, any company which is into auto parts manufacturing can only apply for the certification part of quality management system IATF 16949. But here I would like to throw light on the importance of these core tools. So while dealing with our clients, we always recommend, even if we are not implementing for say getting certified for IATF 16949, but if we are making engineering components and say we want to work in a very good system, then most of the clients, they have started implementing these tools. They may not be certifying for IATF 16949,
but they start implementing these core tools in their new product developments and new product tooling designings, etc., so that they can reap the benefits of these core tools. Maybe they may not be certifying for IATF 16949 because there is a basic criteria that any company which is making auto components only can go in for certification of IATF 16949. So in our case also, out of the say participants today, if someone is from those companies which are into auto parts manufacturing, then they definitely would be understanding the importance of IATF 16949 and either would be certified to this standard or maybe planning to go in for certification of this standard. But for those participants whose companies are not into auto parts manufacturing, still I would request you to start implementing these core tools like FMEA, APQP, EPAP, etc. In their companies. They may not go in for certification part because it is a very important these are very helpful concepts as far as the new product developments or say process improvement is concerned. So basically FMEA is, as we spell it out, FMEA is a core tool called failure mode and effect analysis. And if we explain it in a layman language, any component ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ component ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ component ਇਸ stage ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ failure ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ assessment ਕਰ ਲਈਏ. This is a tool through which when we are saying कि FMEA new product development ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ applicable ਹੈ ਜਾਂ new toolings ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ applicable ਅਸੀਂ generally ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦਾ reason ਇਹ ਹੈ ਕਿ when we are say we have already developed a component, in that case ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ control plans and all such workings have been established, process improvements, the kaizens, we do work on all these processes and more or less the components which we are making regularly are almost established as far as the failures are concerned. Any failure is occurs, we take corrective implementations, we do follow structured problem solving approach, etc. So more or less the established components which we are already producing are have gone through that process of these kind of failures ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. But when we talk about new product development, so there is always a possibility कि जब हम नया प्रोडक्ट डेवलप करने लगे हैं तो उस समय पर उसमें या तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट हमारे कई बार रीट्रायल्स हो जाते हैं. रीट्रायल्स मींस कि हमने कोई डाई किसी तरीके से बनाई, जब वो चलाई तो पता चला कि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, हमें उसमें डाई में कुछ रीवर्क करना पड़ेगा. या हमने कोई प्रोसेस सीक्वेंस सोचा कि पहले यहाँ पर हम फोर्जिंग को यहाँ से फेस करेंगे, फेस करने के बाद ड्रिलिंग करेंगे, ड्रिलिंग के बाद करने के बाद ये प्रोसेस करेंगे, या पहले ड्रिलिंग करेंगे फिर बाद में ये ऑपरेशंस करेंगे. तो हम जो एक प्रोसेस फ्लो डिजाइन करते हैं, वो जो प्रोसेस फ्लो रहता है कई बार ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जो हमने इनिशियल थॉट प्रोसेस से कोई प्रोसेस फ्लो डेवलप किया हुआ होता है, वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट हमारे को प्रोसेस फ्लो चेंज करना पड़ जाता है कि पहले ड्रिलिंग नहीं होना, पहला फेस ही करांगे फिर ड्रिलिंग करांगे. सो जब हम ऐसे कोई भी चेंजेस करते हैं, और इवन थर्ड एस्पेक्ट ये भी आ जाता है कई बार कि हम जब कभी नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर हमारी नॉन कन्फर्मेंसेस जो हैं उनको हम ओवरलुक कर देते हैं. नॉन कन्फर्मेंसेस मींस कि आई वुड टेक ए प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ ए नॉन कन्फर्मेंस ड्यूरिंग न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. कि आमतौर पर मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूं ऑफ एन इंजीनियरिंग सेगमेंट कंपनी, बिकॉज जनरली ऑटो कंपोनेंट्स में इंजीनियरिंग रिलेटेड ही हमारी ज्यादा कंपनीज होती हैं. तो उसमें एक दो हम लेके चलते हैं, इधर ना देखते रहो ना यार, चल रहे ओके. सो उसमें जनरली हम जो देखते हैं कि मान लीजिए हमने कोई एक कंपोनेंट का, हमें कस्टमर ने कहा कि आप हमारे को फर्स्ट स्टेज पर से 10 नंबर्स ऑफ सैंपल सबमिट कर दीजिए, और उसके बाद सेकंड स्टेज पर हमें कस्टमर की एक रिक्वायरमेंट रहती है कि जब ये 10 सैंपल्स अप्रूव हो जाएंगे तो उसके बाद यू नीड टू सप्लाई अनदर पायलट लॉट ऑफ से 40-50 कंपोनेंट्स. तो हम जनरली क्या है, एक सोच लेकर कि हम जब पहली बार कोई डाई बना रहे हैं और फोर्जिंग कर रहे हैं, तो जब फोर्जिंग करें तो उस समय हम जनरली 85, 90, 100 का एक बैच लॉट ले लेते हैं
कि चलो ये जो हमने 100 पीस प्रोसेस किए हैं, इसमें से हम फर्स्ट स्टेज पर पहले 10 कंपोनेंट्स जो सैंपल इनिशियल मांगे गए हैं वो भी सबमिट कर देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट जो हमें पायलट लॉट देना है से 40 और 50 नंबर्स, वो भी इसी फोर्जिंग लॉट में से हम सप्लाई कर पाएंगे। बट उसके लिए देखा गया है कि हमारी अलग अलग स्टेजेस ऑफ जो डेवलपमेंट के दौरान अलग अलग हमने ऑपरेशंस करने होते हैं एज पर द इनिशियल प्रोसेस फ्लो डिसाइडेड। A participant has joined the या meeting. कोई उसके बाद कोई मशीनिंग ऑपरेशंस कर रहे हैं, ड्रिलिंग, मिलिंग, सीएनसी टर्निंग और ऑल जितने भी हम ऑपरेशंस कर रहे हैं, उसके बाद कोई हार्डनिंग, टेम्परिंग है या कोई ब्रोचिंग है, पाउडर कोटिंग है, पेंटिंग है, अल्टीमेटली ये सारे प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए जब हम किसी स्टेज पर पहुंचते हैं कि हमारे ये फाइनल सैंपल्स हमने सबमिट करना है, तो इन मैनी ऑफ द केसेस, आई वुड नॉट से मोस्ट ऑफ द केसेस, बट इन मैनी ऑफ द केसेस ये ऑब्जर्व किया गया है कि हमने 10 सैंपल देने होते हैं और हमने जो फोर्जिंग की होती है 85, 90, 100 पीसीस तक की जो फोर्जिंग की होती है, उसके बाद हम जिस दिन हमें सैंपल सबमिट करने होते हैं एट टाइम्स ये ऑब्जर्व किया कि वो 10 कंपोनेंट्स भी पूरे ओके 10 नहीं मिल रहे हैं, उसमें से 7 या 8 पूरे ओके मिल रहे हैं, कोई एक दो को हमारे को अंडर डेविएशन, कुछ माइनर ऑब्जर्वेशंस को ओवरलुक करते हुए वो 10 का एक सैंपल लॉट हम सबमिट करते हैं, और हमारे पास रेस्ट जो फोर्जिंग होती है वो सारी इस अलग अलग स्टेजेस पर इन नॉन कन्फर्मेंस कन्वर्ट हो जाती है। सो इट मीन्स कि हम अगर 80, 90, 95 पीस फोर्जिंग करने के बाद भी उसमें से 10 पीस ही सैंपल दे पाए, वो भी मुश्किल से, तो हमारा नॉन कन्फर्मेंस ड्यूरिंग न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट लेवल एक्सेसिवली हाई है। लॉजिकली ये होना चाहिए कि उस 80-90 में से हम 10 पीस सैंपल भी सबमिट कर पाए, और उसके बाद जो हमारे को 50 पीसेस का पायलट लॉट भी देना है वो भी हम उसी लॉट में से, फोर्जिंग लॉट में से दे पाए। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ज्यादा रहती हैं, इसलिए इसको हम ज्यादा फोकस लेके चलते हैं कि एफएमईए जो है वो ज्यादा यूजफुल हमें न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में रहता है। ऑफ कोर्स जब हम किसी कंपनी में इसको नए सिरे से इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं एफएमईए कंसेप्ट्स को, तो उसमें हम टू फेजेस, टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी लेकर चलते हैं। फर्स्ट इज कि जो भी नया कंपोनेंट हम डेवलप करेंगे उसके लिए तो डेफिनेटली हम ये जो एफएमईए है ये रूट यूज करेंगे ही करेंगे। एपीक्यूपी का पार्ट है कि जब भी हम कंपोनेंट डेवलप करने लगे हैं तो सीएफटी कॉल करेंगे, फिजिबिलिटी स्टडी की, फिजिबिलिटी स्टडी करने के बाद आपने जब नेगोशिएट करके फाइनल कर दिया कि हाँ ठीक है कस्टमर को सैंपल्स देने हैं, तो उसके बाद आप उसका एक टेंटेटिव प्रोसेस फ्लो, टेंटेटिव कंट्रोल प्लान बनाकर एक एफएमईए की एक्सरसाइज करते हैं। उस टाइम पर हम ये जो एफएमईए करते हैं वी कॉल इट प्रोसेस एफएमईए। FMEA is of two types. One is process FMEA, second is design FMEA. अभी मैं जितने की बात कर रहा हूं, अभी ज्यादातर मेरा फोकस है वो प्रोसेस FMEA के ऊपर है। उसमें हम जब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के दौरान ऐसा करते हैं तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी ये हो गई कि जितने भी नए कंपोनेंट्स डेवलप होंगे उनको तो हम FMEA रूट यूज करेंगे अंडर APQP, और जो नए कंपोनेंट डेवलप होंगे वो FMEA की QP एस्टेब्लिश होने के बाद ही प्रोसेस करेंगे। बट साथ में ही सेकंड स्ट्रेटजी हम ये फॉलो करते हैं कि मान लीजिए कि हम कुछ प्रोडक्ट फैमिलीज बनाते हैं, से कनेक्टिंग रॉड बनाते हैं, या हम कोई शाफ्ट बनाते हैं, या हम कोई किक स्टार्टर बना रहे हैं, या एनी को फैमिली ऑफ कंपोनेंट्स हम बनाते हैं। तो अगर आप उस फैमिली ऑफ कंपोनेंट्स में से मान लीजिए आप कोई किक स्टार्टर बना रहे हैं और वो डिफरेंट 20-25 तरीके के मॉडल्स ऑफ किक स्टार्टर्स बना रहे हैं, बट उनमें मोर और लेस प्रोसेसेस वही फॉलो होते हैं, जो एक में फॉलो होते हैं सारों में वही लगभग वही प्रोसेसेस फॉलो होते हैं। तो हम क्या डिसाइड करते हैं एज ए सेकंड स्ट्रेटजी कि जितने भी प्रोडक्ट फैमिलीज हम बना रहे हैं उन प्रोडक्ट फैमिलीज में से मैक्सिमम वॉल्यूम वाला जो मॉडल हम बनाते हैं उसको लेकर एक एफएमईए कर लीजिए। मान लो आप किक स्टार्टर बना रहे हैं, उसके साथ कनेक्टिंग रॉड भी बना रहे हैं, शाफ्ट भी बना रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, किक स्टार्टर आपने एक तरीके का ले लिया जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम है, ऐसे ही आपने कनेक्टिंग रॉड एक ऐसी ले ली जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम है, ऐसे ही आपने एक शाफ्ट ऐसी ले ली जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम है। तो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स भी जो आप बना रहे हैं उसमें से भी एक प्रोडक्ट फैमिली में से एक कंपोनेंट लेते हुए उसका आप प्रोसेस एफएमईए कर लेते हो, जिससे क्या है उस कंपोनेंट्स में जितने भी हम कंपोनेंट बनाते हैं उन कंपोनेंट्स में हम जब हम एफएमईए कर लेते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि वो प्रोसेसेस हमारे सारे फुल प्रूफिंग वाले मोड में चले जाते हैं।
सो ये टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी हम जनरली फॉलो करते हैं जब हम एफएमईए को इंप्लीमेंट करते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में सारे कंपोनेंट्स को उस रूट में से एपीक्यूपी के अंदर एफएमईए से, और जो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स हैं वन कंपोनेंट आउट ऑफ ईच प्रोडक्ट फैमिली विच वी मेक, तो ताकि उससे क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में बनने वाले टोटल कंपोनेंट्स जो हैं वो उनका हम उनकी प्रोसेसेस को पूरा कंप्लीटली कवर करते हुए एफएमईए प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, तो जिससे हमारी नॉन कन्फर्मेंस के चांसेस कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। सो दिस वाज एन ओवरव्यू कि एफएमईए आईआईटीएफ कंपनीज में किस तरीके से लागू करना चाहिए, कौन कौन सी कंपोनेंट सेट करने चाहिए, किस तरीके से इसको प्रोसीड करना चाहिए। Now I will go into the details of basics of FMEA कि जब हम कोई भी FMEA फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस में से मैं पहले प्रोसेस के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा, उसके बाद सेकंड पार्ट लेके चलूंगा डिजाइन में, जिसमें वी विल बी फोकसिंग ऑन टूलिंग जो हम डेवलप करते हैं उसको भी फोकस लेकर कि उसमें FMEA कैसा होना चाहिए। आमतौर पर देखा गया बहुत सारी कंपनीज में जो तो हम कंपोनेंट प्रोसेस करते हैं उन कंपोनेंट की प्रोसेसेस का तो प्रोसेस एफएमईए हो जाता है, बट जो हम टूलिंग बना रहे हैं उन टूलिंग बनाने का जो प्रोसेस पार्ट है, प्रोसेस फ्लो है, उसका जो एफएमईए वो कहीं ना कहीं ओवरलुक हो जाता है। सो आई विल गिव फोकस ऑन बोथ दीज पार्ट्स, प्रोसेस एफएमईए एज वेल एज टूलिंग मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर टूलिंग प्रॉपर तरीके से डिजाइन होकर बन गई है तो वो जनरली प्रोडक्ट्स जो हैं उनके कन्फर्मेंस लेवल बेटर ही रहते हैं अगर टूलिंग अच्छी है तो। सो गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ एफएमईए की एफएमईए बेसिकली हम कैसे करते हैं, किस तरीके से प्रोसीड करते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर रॉबिन टू काइंडली शेयर दैट पीडीएफ फाइल जो एफएमईए के, वो काइंडली स्क्रीन शेयर कर दीजिए। So is it visible to everybody? Unmute कर दो सारे में, unmute. I'm requesting you all to kindly check it. Is it visible to everybody? Anybody is having an issue in seeing this, kindly say the chat box and you can mention over there if anybody is having an issue in viewing this, what I am trying to say. Is it visible to everybody? Okay. So basically it is a team, but what is important to see over here is an acronym base that stands for failure modes and effects analysis, and most importantly it is a team based systematic and proactive approach for identifying the ways that a process or design can fail, why it might fail and how it can be made safer। यहाँ मैं इस चीज को एक वर्ड यहाँ लिखा गया है, इसको जरूर फोकस करना चाहूंगा। In many of the organizations it has been observed कि FMEA जब हम करते हैं तो उस समय पर FMEA में टीम पूरी जो है क्रॉस फंक्शनल टीम उसको इन्वॉल्व नहीं किया जाता। When I am saying team, अगर आप कोई मशीन्ड कंपोनेंट थ्रू फोर्जिंग रूट बना रहे हैं तो इन दैट केस फोर्जिंग के जो इंचार्ज है वो उसका पार्ट होने चाहिए। Then tool room in charge should be a part of that. Machining person who is doing machining on that should or she should be a part of it. So वो टोटल जो टीम इन्वॉल्व है इन दैट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उन सारों की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, ना कि हमने एक बार एक एफएमईए किया वैसा ही दूसरा कोई कंपोनेंट आया तो चलो एफएमईए किया, एक बार एक डॉक्यूमेंट बन गया जस्ट टू सप्लाई टू अवर कस्टमर। Instead of using this approach, whenever we are doing developing new component, any new component, उसमें उस component के हिसाब से उसका FMEA प्रॉपर पूरी टीम को इन्वॉल्व करते हुए होना चाहिए, ताकि अगर उनके इनपुट्स फोर्जिंग की टीम को आप इन्वॉल्व करेंगे तो वो अपने इनपुट शेयर करेंगे कि यहाँ पर कोई ड्राफ्ट नेगेटिव ड्राफ्ट तो नहीं बन रहा है,
टूल रूम वाला देखेगा मुझे पार्टिंग लाइन कहाँ रखनी है। क्वालिटी के पर्सन को अगर आपने सीएफटी में बिठाया है तो वो ये देखेगा कहाँ पर कौन सी टॉलरेंसेस दी हुई है, कोई टॉलरेंसेस ऐसी तो नहीं जो हम मीट नहीं कर सकते। तो जब आप फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं उसके बाद जब एफएमईए करते हैं तो इस तरीके से पूरी टीम को, चाहे वो फिजिबिलिटी स्टडी है चाहे वो एफएमईए कर रहे हैं, दोनों फेजेस में आपको पूरी टीम को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। देन बेसिकली हम जब भी कोई बेसिकली जो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में सबसे पहले 1960s में यूज हुआ एफएमईए। फोर्ड स्टार्टिंग यूजिंग इट इन 1972। 1980 में बिग थ्री जो हैं वो क्राइसलर, जनरल मोटर्स, ये जो हैं कंपनीज, इन्होंने इसको फॉलो किया। और 1993 से ऑटोमोटिव AIAG ग्रुप जो हमारा है उन्होंने इसको फॉलो इनकॉर्पोरेट कर लिया एज स्टैंडर्ड्स की। इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम अपने सारे कंपोनेंट्स में फॉलो करेंगे। लेटेस्ट इसकी वर्जन जो 5th एडिशन भी आया है उसको AIAG ने जो है विद जर्मन जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एसोसिएशन है BDA, उसके साथ मिलकर जो है इसको फाइनल किया। जो लेटेस्ट 5th एडिशन 2018 में इन्होंने जो फाइनल किया है। तो ये बेसिकली इसका बेनिफिट्स क्या है कि इंप्रूवमेंट्स इन सेफ्टी, क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। अब इसमें बेसिकली कैसे इसको प्रोसीड करना है मैं थोड़ा सा उसके ऊपर जाना चाहूंगा पहले कि इसमें कैसे हम प्रोसीड करते हैं। ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जो हम एफएमईए में जनरली यूज करते हैं। मैं इसमें सबसे पहले बेस लेवल का एक डॉक्यूमेंट इसमें हमें रेफर करना पड़ता है, उसको मैं इलेबोरेट करना चाहूंगा। दैट इज कॉल्ड कंट्रोल प्लान। चाहे वो नया प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे हैं चाहे वो हमारा एग्जिस्टिंग कंपोनेंट है, अगर उसका एफएमईए कर रहे हैं, दोनों केसेस में हम एक कंट्रोल प्लान, पहले प्रोसेस फ्लो डेवलप करते हैं कि वो कंपोनेंट की पहले स्टेज पर क्या होगा, सेकंड ऑपरेशन क्या होगा, थर्ड ऑपरेशन क्या होगा। तो जेनरिक प्रोसेस के हिसाब से तो हम प्रोसेस फ्लो डायग्राम बना लेते हैं, लेकिन उसको डेप्थ में एक्सप्लेन करते हुए हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इट इज कॉल्ड कंट्रोल प्लान। कंट्रोल प्लान बेसिकली उस कंपोनेंट को बनाने की पूरी डिटेल एक्सप्लेन कर देता है कि ये कंपोनेंट का पहला ऑपरेशन क्या होगा, कौन सी मशीन किस कैपेसिटी की मशीन पर होगा, देन उसके बाद वहां पर कौन कौन से पैरामीटर बनेंगे, जो पैरामीटर बनेंगे उसको हम इंस्पेक्शन कैसे करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे तो उसके बाद वो कितनी फ्रीक्वेंसी पर इंस्पेक्शन करेंगे। इस टाइप का एक डॉक्यूमेंट जो भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में या इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, दे ऑल माइट बी अवेयर ऑफ दिस बेसिक डॉक्यूमेंट कॉल्ड कंट्रोल प्लान। तो हम जब अगर कोई कंट्रोल प्लान के बारे में अवेयर नहीं है तो फिर वो बहुत बेसिक्स से सीखने वाली बात हो जाती है, और अगर कंट्रोल प्लान के बारे में अवेयर है तो फिर उसको हम बड़े आसानी से नेक्स्ट लेवल पर एफएमईए लेवल पर लेकर जा सकते हैं। तो जो कंट्रोल प्लान आपका बना हुआ रहता है टेंटेटिव कंट्रोल प्लान है इन केस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और अगर आपका एस्टेब्लिश कंपोनेंट है तो ऑलरेडी जो आपका कंट्रोल प्लान वो अलग अलग ऑपरेशंस होने हैं, उन ऑपरेशंस को स्टडी करते हैं कि उन ऑपरेशंस का फेलियर मोड क्या क्या हो सकता है। आप देख रहे होंगे प्रोसेस फंक्शन रिक्वायरमेंट्स। मान लीजिए अगर हम पहले ऑपरेशन की बात करें, आप कोई कटिंग कर रहे हैं, तो अब कटिंग करने पर आपकी स्पेसिफिकेशन वहां पर होगी, या तो लेंथ के हिसाब से आप कटिंग करेंगे जी इतने mm प्लस माइनस इतने mm, या आप वेट स्पेसिफाई कर देते हैं जी इतना वेट प्लस माइनस इतना वेट। दोनों केसेस में अब आपने मान लो पहला प्रोसेस फंक्शन रिक्वायरमेंट्स कॉलम, जो फर्स्ट कॉलम है वहां पर लिख दिया, वो जो मैं अपना कर्सर यहां ला रहा हूं आपको बड़ा आसानी से यहां दिख जाएगा स्क्रीन के ऊपर, प्रोसेस फंक्शन रिक्वायरमेंट्स लेंथ 500 प्लस माइनस 2 mm। अब उसका फेलियर मोड क्या हो सकता है, हम जब भी किसी डायमेंशन की बात करते हैं तो वो जो डायमेंशंस होती हैं वो दो तरीके से फेल हो सकती हैं। हम किसी पर्टिकुलर डायमेंशन की बात करेंगे तो उसमें अगर टॉलरेंस दी हुई है 500 प्लस माइनस 2 mm, या अगर यूनिलैटरल भी दी हुई है तो भी उसके दो ही पॉसिबिलिटीज रहती हैं कि अगर मैंने कहा 500 प्लस माइनस 2 mm तो मींस उसके दो फेलियर मोड हो सकते हैं कि 502 mm से ज्यादा लेंथ अगर कट गई तो, और 498 mm से कम लेंथ अगर कट गई तो क्या होगा। सो whenever we are saying any objective, यहां पर पैरामीटर की बात कर रहे हैं जिसमें उसकी टॉलरेंसेस स्पेसिफाई की हुई है, तो उसके हर एक पैरामीटर के दो फेलियर मोड होंगे। वो लेंथ उससे जो मैक्सिमम टॉलरेंस है उससे ज्यादा नहीं बन जाए, और दूसरा फेलियर मोड होगा मिनिमम टॉलरेंस लेवल जो है उससे मिनिमम स्पेसिफिकेशन लिमिट जो है उससे नीचे नहीं चली जाए।
सो दोनों फेलियर मोड्स को हम अलग अलग तरीके से एनालाइज करते हैं। और यहां मैं ये चीज और हाईलाइट करना चाहूंगा कि जब हम एफएमईए कर रहे होते हैं तो उस समय पर एक ही ऑपरेशन के ऊपर से फोर्जिंग हो रही है, वहां पर देयर कुड बी मल्टीपल पैरामीटर्स बीइंग अकरिंग इन बीइंग क्रिएटेड इन दैट कंपोनेंट। लेंथ भी बन रही हो सकती है, डाया भी साथ में बन रहा है, कोई सीडी भी मेंटेन हो रही है, कोई हाइट भी मेंटेन हो रही है। तो अगर एक ऑपरेशन के ऊपर मल्टीपल पैरामीटर्स बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं इन दैट कंपोनेंट, तो हमें मल्टीपल पैरामीटर्स को, हर एक पैरामीटर को, जैसे मैंने बताया कि दोनों फेलियर मोड मैक्सिमम स्पेसिफिकेशन लिमिट से ज्यादा नहीं बन जाए और मिनिमम स्पेसिफिकेशन लिमिट से कम नहीं बन जाए, इन दोनों फेलियर मोड के हिसाब से अलग अलग एनालाइज करना होता है। और यहां एक दूसरा एस्पेक्ट भी रहता है कि मैंने जैसे बताया, जो तो हमारे डायमेंशन स्पेसिफाइड हैं, जिनमें हम आसानी से कह सकते हैं इसकी मैक्सिमम स्पेसिफिकेशन लिमिट 502 mm हो गई और मिनिमम स्पेसिफिकेशन लिमिट 498 mm हो गई। लेकिन जहां पर कहीं विजुअल एस्पेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है, मान लो फोर्जिंग जब हम कर रहे हैं तो हम ये एक फंक्शन रिक्वायरमेंट एक्सपेक्ट करेंगे कि दैट शुड बी क्रैक फ्री, उसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम ये फेलियर फंक्शन रिक्वायरमेंट की बात करेंगे क्रैक फ्री, तो उसका फेलियर मोड एक ही होगा कि अगर क्रैक आ गया तो यहां समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जहां तो हम कहीं डायमेंशन की बात करते हैं जिसमें टॉलरेंसेस स्पेसिफाइड रहते हैं, तो उस केस में उसके दो फेलियर मोड होंगे, मैक्सिमम स्पेसिफिकेशन लिमिट से ज्यादा नहीं बन जाए और मिनिमम स्पेसिफिकेशन लिमिट से नीचे नहीं बन जाए। लेकिन जहां कहीं विजुअल एस्पेक्ट इन्वॉल्व होगा, वहां पर उसका फेलियर मोड एक ही होगा। क्रैक फ्री चाहिए था, फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी, लेकिन वहां क्रैक बन गया तो ये फेलियर मोड हो गया। अब इसके आगे आप अपने उसके आगे सारा वो एनालाइज करेंगे, इफेक्ट्स ऑफ फेलियर, सिवियरिटी एंड ऑल सच पार्ट्स। सो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें हर एक पैरा ऑपरेशन के ऊपर जितने भी पैरामीटर बन रहे हैं, उन सारे पैरामीटर्स को हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा दोनों फेलियर मोड के हिसाब से। अगर वो डायमेंशन है, अगर वो विजुअल एस्पेक्ट है, तो इन दैट केस एक फेलियर मोड से इसको इवेल्युएट करना पड़ेगा सारे के सारे ऑपरेशंस पर, हर एक पैरामीटर को। उसके बाद नया ऑपरेशन ले लेंगे, उसके सारा पैरामीटर्स करेंगे। ऐसे करते हुए कंट्रोल प्लान में जितने भी हमारे टोटल प्रोसेसेस दिए हुए हैं, हर एक प्रोसेस पर हर एक पैरामीटर का जो फेलियर मोड है वो दो या एक जैसा भी होगा, उस हिसाब से हम आगे प्रोसीड करेंगे। और जब आगे प्रोसीड करना है, उसको मैं एक एग्जांपल लेकर आगे आपको ब्रीफ कर देता हूं। जैसे मैंने आपको यहां टेबल पे बताया, प्रोसेस फंक्शन रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो हमारी हो गई लेंथ 500 ± 2 mm। मैं अब एक एग्जांपल को आगे इलेबोरेट कर रहा हूं। आपने सारे कंट्रोल प्लान के सारे पैरामीटर्स को इसी तरीके से आगे इवेल्युएट करना होगा। उसमें सेकंड कॉलम है पोटेंशियल फेलियर मोड। वो कैसे फेल हो सकता है? लेंथ प्रोसेस फंक्शन रिक्वायरमेंट है 500 ± 2 mm। यहां पर पहला फेलियर मोड आएगा 500 मोर देन 502 mm, और उसके नीचे दूसरा फेलियर मोड आएगा लेस देन 498 mm। इन दोनों मोड सेकंड नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, हमारा जो कॉलम है वो है पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ फेलियर, कि अगर ये फेलियर हो गया तो उसका नुकसान क्या होगा, आगे नुकसान क्या होगा। अब जब हम ये इफेक्ट्स ऑफ फेलियर देखते हैं, तो ये इफेक्ट्स ऑफ फेलियर दो नजरिए से देखे जा सकते हैं। एक नजरिया कि इसके बाद होने वाली प्रोसेसेस पर इसका क्या फर्क पड़ेगा, या उस प्रोसेस पर नॉन कन्फर्मेंस कोई एकदम ज्यादा तो नहीं हो जाएगी, या अगली प्रोसेसेस के ऊपर क्या प्रॉब्लम आने वाली है। मान लो कहीं कोई लेंथ अगर ज्यादा कट गई तो वो आगे फिट ही नहीं होगा बिलेट इंडक्शन हीटर में। डाया अगर ज्यादा हो जाए तो वो बिलेट इंडक्शन हीटर में फिट नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें ये देखना होगा कि उस प्रोसेस के ऊपर कहीं नॉन कन्फर्मेंस ज्यादा तो नहीं हो जाएगी, या उसके प्रोसेस के बाद होने वाली प्रोसेसेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। एक तो ये क्राइटेरिया है चेक करने का पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ फेलियर का, और दूसरा क्राइटेरिया है कि ये लेंथ अगर एज इट इज आगे इसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं होती हो, और ये एज इट इज कस्टमर के पास जाने के चांस हो, तो अगर कस्टमर के पास पहुंच जाएगी तो उसको क्या नुकसान हो सकता है, यूजर को क्या नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर ये कोई ब्रेक का कंपोनेंट हो और ब्रेक फेल हो जाए, तो इन दैट केस इट मे कॉज इंजरी और डेथ ऑफ द राइडर।
तो उसको जब हम नेक्स्ट कॉलम में हमने उसको इवेल्युएट करना है, उसकी सिवियरिटी रेटिंग देनी है, तो उसमें पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ फेलियर देखते हुए हम उसकी सिवियरिटी की रेटिंग डिसाइड करते हैं। तो जब हम सिवियरिटी की रेटिंग डिसाइड करते हैं तो उसके लिए हम एक टेबल रेफर करते हैं। ऐसे ही मैं वो टेबल्स आपको तीनों बाद में दिखाता हूं। हम जब सिवियरिटी की रेटिंग देते हैं किसी भी इफेक्ट ऑफ फेलियर की, तो उसमें ये इंपैक्ट देखते हुए कि वो जो इफेक्ट्स ऑफ फेलियर हैं उनके हिसाब से अगर वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है तो उसकी रेटिंग सिवियरिटी की 10 होगी। अगर वो कंपैरेटिवली कितना नुकसान उससे हो सकता है अगली प्रोसेसेस में या टू द यूजर, डिपेंडिंग अपॉन बोथ, कितना ज्यादा नुकसान है उतनी ही सिवियरिटी की रेटिंग होगी। मैक्सिमम ये 10 हो सकती है, और अगर मिनिमम लग रही है हमारे को तो ये मिनिमम रेटिंग 1 हो सकती है, जिसमें हमें लगे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। तो इन दैट केस सिवियरिटी की रेटिंग हम 1 से 10 के बीच में यहां रेटिंग देते हैं। और अगर वो सिवियरिटी की रेटिंग ऐसी है जो हायर है या हमें कस्टमर ने स्पेसिफाई किया हुआ है इन अवर ड्राइंग, ये कोई क्रिटिकल डायमेंशन है, तो इन दैट केस वो हम जो क्लास है वो यहां पर क्रिटिकल लेकर चल सकते हैं। उसकी जो कैटेगरी है उसको क्रिटिकल क्लास लेके चल सकते हैं। उसके बाद उसका मैकेनिज्म और कॉजेज क्या हो सकते हैं। लेंथ ज्यादा कट जाएगी, हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं, लेंथ मोर देन 502 mm। अब अगर लेंथ 502 mm से ज्यादा कट जाएगी तो उसकी वजह क्या हो सकती है, वो यहां इस कॉलम में आएगा, पोटेंशियल कॉजेज और मैकेनिज्म ऑफ फेलियर। कि आपने वहां पर कोई मैकेनिज्म नहीं लगाया हुआ होगा जिसमें वो लेंथ जो है एडजस्टमेंट हो सके। स्टॉपर लगाया हुआ हो तो लेंथ उतनी ही कटेगी, लेकिन अगर कोई स्टॉपर नहीं लगाया, बंदा ही हाथ से लेकर अंदाजे से काटता है या कोई ऐसा रेफरेंस लेके काटता है, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन नेग्लिजेंस। तो वो पार्ट जो है वो पोटेंशियल कॉजेज ऑफ फेलियर जो है वो हम यहां लिखते हैं कि वो जो ये प्रॉब्लम आ सकती है वो किस वजह से आ सकती है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लेते हैं अकरेंस वाला पार्ट। अकरेंस वाला जो पार्ट है इसका मतलब है कि ये वाली जो प्रॉब्लम है ये कितनी इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये लेंथ ज्यादा कट जाए। अब इसमें हमारे को हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो रेफर करना पड़ता है कि लेंथ ज्यादा कटने वाले केसेस कितने परसेंट हमारी नॉन कन्फर्मेंस आती है। इसका भी एक टेबल है, आई विल शो दैट टेबल टू यू, पूरी डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगा। अगर तो इसमें मान लीजिए हमारी कोई रिजेक्शन नॉन कन्फर्मेंस लेवल ऐसी आती है कि जी प्रोसेस में 5 से 10% की रेंज में आ जाता है, तो उसकी अक्रेंस की रेटिंग 10 हो जाएगी। वही वो डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ रिजेक्शन इन अवर एज पर एक्सपीरियंस इन मेकिंग अदर कंपोनेंट्स, तो वो जो हमारी इस प्रोसेस फंक्शन की जो रिक्वायरमेंट आ रही है, इसका फेलियर नॉन कन्फर्मेंस की कितने परसेंट चांसेस हैं, उसके हिसाब से हम अक्रेंस की रेटिंग देते हैं। ये मिनिमम 1 हो सकती है और मैक्सिमम 10 तक हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन उसके कितने परसेंटेज चांसेस है, कितने परसेंट नॉन कन्फर्मेंस ऑलरेडी आ रही है उस टाइप की, उसके बेसिस पर हम रेटिंग देते हैं एक अक्रेंस की रेटिंग। बाद नेक्स्ट आता है करंट प्रोसेस कंट्रोल्स प्रिवेंशन या डिटेक्शन के कितने हैं हमारे। अब ये जो हमारे प्रिवेंशन या डिटेक्शन के प्रोसेस कंट्रोल्स हैं कि क्या हमने अपनी प्रोसेस में इस चीज को प्रिवेंट करने का कोई वो सिस्टम लगाया हुआ है। यहां पर सीधा सीधा इसका एक कोरिलेशन डेवलप होता है विद अकरेंस की हमने क्या रेटिंग दी है। मान लीजिए हम अकरेंस की रेटिंग काफी हाई दे रहे हैं, कोई 8, 9, 10 रेटिंग दे रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि हमारे करंट प्रोसेस कंट्रोल्स जो हैं वो प्रिवेंशन या डिटेक्शन के बहुत डाइल्यूटेड हैं। बट अगर हैं तो हमारे क्या करंट प्रोसेस कंट्रोल्स हैं, क्या सिस्टम्स हमने लगाए हुए हैं कि ये चीज नहीं होगी वो प्रिवेंशन में आ जाएगा, और अगर हो गई तो डिटेक्ट हो जाएगी, पकड़ी जाएगी, उसको हम करंट प्रोसेस कंट्रोल डिटेक्शन में नोट करके रखते हैं। और इसके बाद हम लास्ट जो रेटिंग देते हैं वो एक तीसरा स्केल की रेटिंग देते हैं, वी कॉल इट डिटेक्शन। कि मान लीजिए ये लेंथ बन गई ज्यादा, तो किस स्टेज पर डिटेक्ट होगी, पहली बार डिटेक्ट होगी कि नहीं होगी, और अगर डिटेक्ट होगी तो किस स्टेज पे डिटेक्ट होगी। अब यहां पर डिटेक्शन मेथड के हिसाब से मान लीजिए इसमें हम अपना मेथड ऑफ इंस्पेक्शन और प्रिवेंशन दोनों को ध्यान में रखते हुए डिटेक्शन की एक रेटिंग देते हैं। इसमें भी एक टेबल रेफर करते हैं, आई शो दैट टेबल टू यू। अब जब हम डिटेक्शन की रेटिंग देते हैं जब हम डिटेक्शन की रेटिंग देते हैं तो उस समय पर अगर तो हमारा कोई उस प्रोसेस के ऊपर पोका लगा हुआ है जो प्रिवेंटिव है, यानी हमने वहां पर ऐसा कोई मैकेनिज्म लगाया हुआ है कि ये चीज बन ही नहीं सकती,
तो इन दैट केस डिटेक्शन की रेटिंग पोकायोके के बेसिस पर प्रिवेंटिव पोकायोके के हिसाब से वो 1 हो जाएगी। अगर आपने कोई डिटेक्टिव पोकायोके लगाया हुआ है तो वो रेटिंग 2 हो जाएगी। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपके यहां ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जी लेंथ ਵੱਧ बन गई तो कितनी चेक होनी जी, ये तो फिर सीधा अगे प्रोसेस से चली जानी है, कहीं पर डिटेक्ट नहीं होगी या कस्टमर के पास पहुंच जाएगी या अगली प्रोसेस में पहुंच के जो नुकसान उसने करना है वो कर देगी। तो इन दैट केस हमारा जो डिटेक्शन मेथड है उसकी रेटिंग 10 हो जाएगी अगर कोई चेक नहीं होता है तो। अगर हम मान लीजिए एक कोई सैंपलिंग चेक करते हैं उसके हिसाब से रेटिंग अलग है। इसका एक टेबल है जो हम रेफर करते हैं। तो अब मैं आपको पहले वो तीनों टेबल दिखाना चाहूंगा। मिस्टर रॉबिन काइंडली अरेंज दैट। रॉबिन जी एक मिनट, रॉबिन जी वो टेबल शेयर करना, वो टेबल सीखे ना जेडे एक एफएम चेंज करना, हाँ चेंज करना। तो these मैंने आपको बताई हमारी रैंकिंग 10 हो गई। वही अगर हमारी 50 पर 1000 पीसेज है यानी 5% तो वो 9 हो गई। 20 पर 1000 पीसेज 8 हो गया। इस तरीके से 0.01 पर 1000 पीसेज है तो हमारी जो रेटिंग है रैंकिंग है वो 1 आ जाती है। एज फार एज अक्रेस इज कंसर्न यानी हमारे कितने परसेंट चांसेस हैं इस टाइप का फेलियर आने के। सो ये एक टेबल है जो हम रेफर करते हैं फॉर अक्रेस की रेटिंग देने के लिए। 1 से लेके 10 तक की रैंकिंग देते हैं और उसमें अगर परसेंटेज ऑफ रिजेक्शन कितनी हमारी उस टाइप के प्रोसेस में ऑलरेडी आ रही है उसके एक्सपीरियंस के बेस पर हम जो रेटिंग देते हैं वो अक्रेस की रेटिंग देते हैं फ्रॉम 1 to 10। इसमें हम अक्रेस की रेटिंग देते हैं। ऐसे ही जो सेकंड पार्ट है, रॉबिन 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 ਇੱਥੇ ਰਹੋ। वो दूसरा पार्ट नहीं है ਇਹਦੇ ਨਾ 3 पार्ट है एक ही शो। दिस इज डिटेक्शन मेथड कि हमारे जो डिटेक्शन मेथड है अगर हम एरर प्रूफिंग मोड में हैं। अब देखिए डिटेक्शन मोड में अगर तो ये हमारी डिटेक्शन बहुत ज्यादा हाई है इट इज शोज कि हमारा ए में एरर प्रूफिंग मेथड्स हमने कोई यूज के बीच में होती है डिपेंड क्या अभी लगाया हुआ कि बन ही नहीं सकता
तो इन दैट केस हमारा डिटेक्शन की रेटिंग है वो 1 होगी। एरर डिटेक्शन अगर इन स्टेशन हो रही है तो रेटिंग 2 हो जाएगी, सब्सिक्वेंट लेवल पर होगी तो उस केस में 3 हो जाएगी, इस तरीके से। और अगर हम कोई चेक नहीं कर रहे तो वो रेटिंग 10 तक हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन अवर टाइप ऑफ इंस्पेक्शन या ओके हमने लगाए हुए हैं, एरर प्रूफिंग के सिस्टम लगाए हुए हैं, उसके बेसिस पर हम जो रेटिंग देते हैं वो डिटेक्शन की रेटिंग देते हैं 1 से लेके 10 तक। ऐसे ही ये जो तीसरा पार्ट है सिवियरिटी वाला, इसमें भी हम सीवियरिटी अगर वो हैजार्डस विदाउट वार्निंग है और मे एंडेंजर ऑपरेटर तो इन दैट केस हम उसकी रेटिंग 10 देते हैं। इस तरीके से अगर वो विद वार्निंग है तो 9 है। तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट हम पहले रेफर कर रहे थे, इसमें मैंने आपको 3 अलग अलग चीजों की जो हम रेटिंग दे रहे हैं वो ब्रीफ किया कि सीवियरिटी की रेटिंग कैसे देनी है हर एक फेलियर मोड में, अक्रेंस की रेटिंग कैसे देनी है हर एक फेलियर मोड में, और डिटेक्शन की रेटिंग कैसे देनी है हर एक फेलियर मोड में। तो हमने 3 प्रकार की रेटिंग देनी है हर एक फेलियर मोड में। मैं फिर दोहरा देना चाहूंगा, हर एक पैरामीटर जो हर एक प्रोसेस पर प्रत्येक पैरामीटर जो बन रहा है उसके अगर वो डायमेंशन है तो वे 2 फेलियर मोड होंगे, अगर वो विजुअल एस्पेक्ट है तो 1 फेलियर मोड होगा। इन ऑल दी केसेस हर एक फेलियर मोड को हमने सीवियरिटी, अक्रेस और डिटेक्शन की रेटिंग देनी है, और रेटिंग देने पर मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा पार्ट आता है इसको हम बोलते हैं रिस्क प्रायोरिटी नंबर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट वाज ऑल इंपॉर्टेंट इन द अर्लियर वर्जन ऑफ एफएमईए, लेकिन अभी केवल आरपीएन, अभी हम जो हमने रेटिंग दी थी सीवियरिटी, अक्रेस और डिटेक्शन की हमने रेटिंग दी, मान लो हमने सीवियरिटी में रेटिंग दी 5, अक्रेस में रेटिंग दी 8, तो 5 8 40, और डिटेक्शन में हमने रेटिंग दी 6, तो 240 हमारा रिस्क प्रायोरिटी नंबर आ गया, इसको हम बोलते हैं आरपीएन, रिस्क प्रायोरिटी नंबर। अब ये जो पार्ट है हमने अलग अलग जितने भी फेलियर मोड्स हैं हर एक में सीवियरिटी, अक्रेस, डिटेक्शन की रेटिंग दी, आरपीएन कैलकुलेट कर लिया। देन दूसरा पैरामीटर लिया, उसके 2 फेलियर मोड हैं, दोनों में सीवियरिटी, अक्रेस की, डिटेक्शन की रेटिंग दी, आरपीएन कैलकुलेट कर लिया। हम अपने टोटल कंट्रोल प्लान के हिसाब से उस कंपोनेंट के जितने भी पैरामीटर टोटल हर एक स्टेज पे डेवलप होते हैं उन हर एक पैरामीटर का, हर एक फंक्शन का फेलियर मोड जो है वो लेते हुए सारे के सारे में हम आरपीएन, रिस्क प्रायोरिटी नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। सो सीवियरिटी, अक्रेस, डिटेक्शन की रेटिंग देते हुए अब इसके बाद नेक्स्ट एक्शन आता है कि हमारे को आगे करना क्या है। बट बिफोर वी प्रोसीड कि इसके आगे क्या करना है, अभी तक की जितनी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है इसमें अगर किसी को कोई डाउट्स हैं तो हम वो पहले क्लियर करना चाहते हैं बिफोर वी प्रोसीड फर्दर। मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले
टू क्लैरिफाई है तो यू कैन रीड। कोई चाहिए चलो okay, so there are two queries. One was, could you please explain risk priority number once again? मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं जी। हमने हर एक प्रोसेस फेलियर मोड जो है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि लेंथ बन रही है तो वो 502 से ज्यादा बन जाएगी तो उस केस में एक वो अलग फेलियर मोड है, 498 से कम बन जाएगी तो एक अलग फेलियर मोड है। हम हर एक फेलियर मोड को हम 3 तरीके की रेटिंग देते हैं। सीवियरिटी टेबल रेफर करते हुए कितना नुकसान हो सकता है टू द यूजर और नेक्स्ट प्रोसेस ऑपरेटर। अकरेंस उसका कितने परसेंट चांसेस है ऑन दी बेसिस ऑफ आवर एक्सपीरियंस की इस टाइप की रिजेक्शन कितनी आ जाती है। और उसके बाद थर्ड पार्ट जो है, हम डिटेक्शन मेथड हमारा उसको पकड़ने का मेथड कैसा है। क्या कोई पोका योके लगाया कि ये बन ही नहीं सकता तो फिर हम डिटेक्शन की रेटिंग 1 दे देते हैं। अगर कोई बन गया और सीधा कस्टमर के पास पहुंच जाएगा तो उसकी रेटिंग 10 है, डिपेंडिंग ऑन हमारा किस तरीके का डिटेक्शन मेथड है। हम 3 तरीके की रेटिंग देते हैं, सीवियरिटी, अकरेंस और डिटेक्शन, 1 to 10 के बीच में। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आता है उसको हम बोलते हैं रिस्क प्रायोरिटी नंबर। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मान लीजिए हमने सीवियरिटी की जो रेटिंग दी वो 4 दी, अकरेंस 5 दी, 5 4 5 20, और अगर हमने डिटेक्शन की रेटिंग 6 दी है तो 4 5 20 into 6 120 इज अवर रिस्क प्रायोरिटी नंबर फॉर दैट फेलियर मोड। आई होप यू आर क्लियर ऑन दिस पार्ट की रिस्क प्रायोरिटी नंबर हमें कैसे कैलकुलेट करना है। दिस वाज द फर्स्ट क्वेरी। सेकंड क्वेरी वाज कि सर आई वांट टू नो द डिफरेंस बिटवीन फेलियर एंड पोटेंशियल फेलियर। सी देखिए, पोटेंशियल फेलियर जो है, हम ये जो अभी असेसमेंट कर रहे हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया कि हम पोटेंशियल फेलियर सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो हम उसकी पॉसिबिलिटी दिमाग में लेके चल रहे हैं कि अगर ये ऐसा हो जाए तो क्या होगा। तो फेलियर वो एक्चुअली हुआ नहीं है। व्हेन वी से पोटेंशियल फेलियर तो हम उस केस में कि जो जो पोटेंशियल फेलियर हुआ है उसको भी हम देख के चलिए। ओके चले। ओके, सो जो 2 क्वेरीज और हैं वो मैं एक बार चेक कर लूं, क्योंकि एक एक
उन्होंने रेज किया कि अगर वो 100 और मोर देन इट है, देखिए ऐसा है, जो हमारा रिस्क प्रायोरिटी नंबर है उसकी वैल्यू कितनी को हमने लेके चलना है कि ये इससे ज्यादा अगर है तो एक्शन होना चाहिए। ये जो पार्ट है इसमें आरपीएल लेवल पर जो वो डिस्क्रिशन है वो टू दी ऑर्गेनाइजेशन है, आप अपने तौर पर डिसाइड कर सकते हैं, या अगर आपका कोई कस्टमर स्पेसिफाई करता है तो इन दैट केस अगर तो आपने आपके कस्टमर ने स्पेसिफाई कर दिया, यू हैव टू फॉलो इट। बट अगर कोई कस्टमर स्पेसिफाई नहीं करता है तो इन दैट केस हमारे को वो जो हम एक रेफर कर लेते हैं कि इतना आरपीएम से ज्यादा होगा तो कुछ एक्शन लेने हैं, वो इट इज प्योरली ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन कि हम कितना एक लेवल रखते हैं। मैं यहाँ एक एग्जांपल आपको कोट करना चाहूंगा, कुछ कॉमन जो इंडस्ट्रीज में जनरली फॉलो किए जाते हैं, वो एक एग्जांपल आपसे शेयर कर लेता हूं कि जनरली व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन एफएमईए, पहली बार जब हम एक बार स्टार्ट करते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन तो काफी ऑर्गेनाइजेशन ये देखा गया कि वो या 75 या 100 का एक लेवल रख लेते हैं कि अगर 100 या 75 आएगा तो इससे ज्यादा अगर आएगा तो हम कुछ रिवाइज्ड एक्शन, रिकमेंडेड एक्शन जो है वो लेंगे उसके ऊपर टू रिड्यूस इट बिफोर दैट, बिलो दैट। सो ये सीएफटी आपकी डिसाइड करेगी कि आपने आरपीएन कितना वैल्यू से ऊपर वाले के ऊपर एक्शन इनिशिएट करना है। कस्टमर अगर नहीं डिसाइड करता है, अगर कस्टमर ने डिसाइड कर दिया फिर तो कोई इश्यू नहीं है। टॉप मैनेजमेंट, किसी ने पूछा टॉप मैनेजमेंट जो है वो रिकमेंडेड नहीं है कि टॉप मैनेजमेंट इसमें इंटरवेन करे। टॉप मैनेजमेंट कैन बी ए पार्ट ऑफ दैट सीएफटी, बट इट्स दैट सीएफटी शुड डिसाइड कि हमें कितना वो लेवल रखना है आरपीएन का, जिससे ऊपर अगर वर्किंग करनी है तो उससे ऊपर जो है वो हमें एक्शन लेना है। सो ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ये पुराने वर्जन के हिसाब से बात कर रहा हूं अभी तक की, क्योंकि अभी तक हम जो आरपीएन की बात कर रहे थे वो आरपीएन ऑल दी मोस्ट इंपॉर्टेंट था इन दी अर्लियर वर्जन कि जी अगर आगे हम क्या मान के चलते थे, यहां तक कि हमने जो वर्किंग की सारे प्रोसेस में आरपीएन कैलकुलेट कर दिए, और हमारा वे ऑफ वर्किंग आगे क्या रहता था कि जिथे जिथे आरपीएन 75 तो ज्यादा आ गया या 100 तो ज्यादा जो हमने बेंचमार्क रखा है, जिथे होते तो ज्यादा आ गया आरपीएन, जहां ज्यादा आ गया वहां पर हमारे को कुछ एक्शन इनिशिएट करने हैं, कुछ प्रिवेंटिव एक्शन या डिटेक्ट जो करेक्टिव एक्शन है वो इनिशिएट करने हैं, और फिर दोबारा कैलकुलेट करना है सीवियरिटी, अक्रेंस और डिटेक्शन, और आरपीएन उससे नीचे आ गया तो ठीक है जी, ओके है। अर्लियर ऑन वी यूज्ड टू फॉलो दिस सिस्टम कि अगर आरपीएन एक लेवल से ज्यादा आ गया, जिस जिस लेवल पे आरपीएन उससे ज्यादा आया हमने वहां सारों पर एक्शन इनिशिएट करना है। लेकिन इन द न्यू वर्जन हमने वो ये जो खाली आरपीएन वाला पार्ट है कि खाली आरपीएन को इंपॉर्टेंस देना है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। अब हमारा एक एक्शन प्रायोरिटी जो है वो भी डिसाइड करना होता है कि हमने एक्शन क्या लेना है और उसमें से प्रायोरिटी किसको ज्यादा देनी है, किसको कम देनी है। सो ऑल दी मोर इंपॉर्टेंट आरपीएन नहीं रहा। ऑल दी मोर इंपॉर्टेंट आरपीएन इसलिए नहीं रहा क्योंकि अभी वो एक्शन जो पार्ट है, यहां मैं अब थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा आपको कि जो चेंजेस हुए हैं अभी, जो हमारी 6 स्टेजेस हैं एफएमईए की, वो डेफिनेशन ऑफ स्कोप एंड प्रोजेक्ट, स्ट्रक्चर एनालिसिस, फंक्शनल एनालिसिस, रिसोर्स एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन वाला जो पार्ट है, ये 6 स्टेप्स हम फॉलो करते हैं इन द लेटेस्ट एडिशन। और इसमें एक चीज नई ऐड की गई है, इट इज कॉल्ड मॉनिटरिंग एंड सिस्टम रिस्पॉन्स की, और ये जहां तक कोरिलेटेड है वो है रिलेटेड टू इंडस्ट्री 4.0 एप्लीकेशंस। कि आप देखेंगे हमारी प्रोसेसेस में अब सिस्टम मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म जो वो हम वर्किंग करना शुरू कर रहे हैं बहुत सारी कंपनीज में इंडस्ट्री 4.0 के अंडर, तो ये कहीं ना कहीं उसके साथ कोरिलेट किया गया है। एफएमई में एक एमएसआर का रेफरेंस दिया गया, इट इज कॉल्ड मॉनिटरिंग एंड सिस्टम रिस्पॉन्स, दिस इज वन चेंज। देन जैसे मैंने आपको बताया कि जो रिस्क प्रायोरिटी नंबर है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, अब इसके साथ में एक्शन प्रायोरिटी भी इंपॉर्टेंट हो गई। एक्शन हमने क्या लेना है वो हो सकता है हाई प्रायोरिटी हो, मीडियम प्रायोरिटी हो या लो प्रायोरिटी हो, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फेलियर ऑन इन इंटेंडेड फंक्शन। सो ये जो वीडी एंड आईएजी के हिसाब से अब रिस्क प्रायोरिटी नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा जितना एक्शन प्रायोरिटी नंबर जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। और जब हम एक्शन इनिशिएट करते हैं
उसके ऊपर हमें रेफरेंस क्या चीज लेना है, वो उसका कैसे डिसाइड करना है, किसका एक्शन हाई प्रायोरिटी पे रखना है, मीडियम पे रखना है, लो प्रायोरिटी पे रखना है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करके चलते हैं कि अब हमने पुराने वाले में था खाली आरपीएम ज्यादा है तो उसके ऊपर वर्किंग करनी है, सबसे ज्यादा आरपीएम कहाँ है उसके ऊपर वर्किंग करनी है, फिर सेकंड लेवल पे आरपीएम कहाँ है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि 75 जो बेंचमार्क वाला लेवल था उससे ऊपर जितने जितने थे सारे कवर हो गए, ये नीचे आ गया तो ठीक है। लेकिन अब जो हम वर्किंग करेंगे वो करेंगे ऑन बेसिस ऑफ एक्शन प्रायोरिटी की एक्शन हमने क्या लेना है। और एक एक किसी की वो आई क्वेरी है, एफएमई इज दी रेफरेंस डॉक्यूमेंट फॉर कंट्रोल प्लान और नॉट। देखिए ऐसा है, कंट्रोल प्लान जो टेंटेटिव हम फाइनल करते हैं वो बेसिक, जब हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में वर्किंग कर रहे हैं तो इन दैट केस एफएमईए जो है वो हम बाद में करते हैं, पहले कंट्रोल प्लान जो पार्ट है उसको टेंटेटिव कंट्रोल के प्लान की शेप में एक बार पहले ड्राफ्ट कर लेते हैं, उसको रेफरेंस करते हुए एफएमईए करते हैं। हाँ, एफएमईए में के दौरान जब हमने कोई चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने इन अवर सिस्टम, वो चेंजेस जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल प्लान के अंदर भी रिफ्लेक्ट होने चाहिए। अगर हम एग्जिस्टिंग कंपोनेंट में कर रहे हैं तो सीधा सीधा होगा, और अगर हम एग्जिस्टिंग कंपोनेंट में नहीं कर रहे हैं तो फिर इन दैट केस क्या होगा, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या होगा, जो हमने टेंटेटिव कंट्रोल प्लान बनाया हुआ है उसको हम उसमें वो इनपुट्स डालते हुए फ्रीज करेंगे उस कंट्रोल प्लान को। आई होप दिस इज योर क्वेरी इज आंसर्ड रिलेटेड टू दिस। नहीं जी, इसमें ऐसा आप एफएमईए का बेस क्या लेंगे, जब तक आपने कंट्रोल प्लान के हिसाब से उसके प्रोसेस फ्लो में कहां कौन सी डायमेंशन बन रही है अगर वही डिसाइड नहीं किया, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा ना किस प्रोसेस के अंदर कौन सा पैरामीटर बन रहा है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो कंट्रोल प्लान तो एक बार आपको टेंटेटिव पहले बनाना पड़ेगा, उसके बेसिस पर ही आप एफएमईए करते हैं। होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू। मैं बता रहा था आपको कि अभी हम जो यस प्री लॉन्च बिल्कुल है, प्री लॉन्च हम उसको फ्रीज करते हैं बाद में जब जितने भी हमने डेवलपमेंट जो चेंजेस किए वो नंबर जो है उसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते हुए एक्शन प्लान इनिशिएट करते हैं, और उस एक्शन प्लान में हमने किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है वो हम इस बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि हमारा उसके कई सारे बेसिस रेफरेंसेस हैं। एक बेसिक रेफरेंस ये है कि हमारी सीवियरिटी की जो रेटिंग आ रही है वो अगर वो रेटिंग्स कहीं 7, 8, 9, 10 के बेसिस के ऊपर कहीं आ रही हैं, 7, 8, 9, 10 सीवियरिटी रेटिंग अगर आ रही है तो उस केस में हम प्रायोरिटी उस एक्शन को ज्यादा देंगे जहां पर सीवियरिटी की रेटिंग्स हमारी हायर साइड पे आ रही है। उसके साथ साथ में हमारी जो हमारा एक कोई बेंचमार्क लेवल दिया हुआ है कस्टमर ने, और अगर उस बेंचमार्क लेवल के हिसाब से हमारी उस कंपोनेंट से रिलेटेड जो अक्रेंस वाला जो पार्ट है वो लेवल हमारा हायर साइड देन दी बेंचमार्क दिया हुआ है, तो उस केस में हम वो वाले पार्ट जो एक्शन इनिशिएटेड होगा आरपीएम के बेसिस पर उस एक्शन को भी ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। लेकिन अगेन ये भी जो डिसीजन है कि किस चीज पर एक्शन पहले लेना है बाद में लेना है, दिस अगेन विल बी अ डिसीजन ऑफ दैट कॉम्पोजिशन ऑफ सीएफटी मेंबर्स। इसमें भी कोई ऐसा इनपुट कहीं से नहीं कि कोई कस्टमर दे रहा है आपको इनपुट या कोई और कहीं से इनपुट आपको आ रहा है। हाँ, आपको वो सीएफटी को ही डिसाइड करना है किस चीज के ऊपर हमने पहले एक्शन लेना है, किस चीज के ऊपर बाद में एक्शन लेना है। उसके हिसाब से आप जो जिनके ऊपर पहले एक्शन लेना चाहेंगे आप उसका एक्शन प्रायोरिटी नंबर हायर साइड पे रखेंगे, जो जिनके ऊपर आप सेकंड लेवल पे काम करना चाहेंगे उसको आप एक्शन प्रायोरिटी मीडियम के लेवल पे मान के चलेंगे, और जिनको लगता है सबसे बाद में लेना है उनको आप एक्शन प्रायोरिटी लो लेवल के ऊपर लेकर चलेंगे। सो ये जो पार्ट है एक्शन प्रायोरिटी हम इनिशिएट करते हैं, उसके बेसिस पर ही फर्दर जो एक्शंस है वो लेते हैं। अब जब हम फर्दर दोबारा एक्शन करते हैं, रिकमेंडेड एक्शंस जो होते हैं वो लेने हैं, उसमें भी थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है कि जो हमने मान लीजिए हमने हर एक स्टेज पर
अक्रेंस सिवियरिटी डिटेक्शन की रेटिंग, सिवियरिटी अक्रेंस डिटेक्शन की रेटिंग थी, आरपीएन कैलकुलेट किया हुआ है, जहां पर हमने कुछ रिवाइज वर्किंग की। अब उसकी रिवाइज वर्किंग की पॉसिबिलिटी कहां कहां रहती है, ये भी समझना जरूरी है कि हम जब रिकमेंडेड एक्शन की बात कर रहे हैं उसमें आमतौर पर आप देखेंगे कि सिवियरिटी वाला जो फंक्शन है वो आपके हाथ में नहीं है, आप उस पर कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो सिवियरिटी की रेटिंग मोर और लेस उतनी ही रहेगी। जो पहली बार आपने आरपीएन कैलकुलेट किया, दोबारा आरपीएन कैलकुलेट कर रहे हैं एक्शन टेकन के बाद, वो जनरली आपकी सिवियरिटी की रेटिंग तो उतनी ही रहेगी जो आपने पहली बार आरपीएन कैलकुलेट करते हुए की है। हाँ, फर्क कहां पर आ सकता है, अक्रेंस या डिटेक्शन में फर्क आ सकता है, लेकिन अक्रेंस में भी जो फर्क आना है वो भी ओवरनाइट नहीं आ सकता। जो अक्रेंस का डिफरेंस आएगा, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि अभी आपको ऐसा लगता है कि मेरी इस कंपोनेंट में रिजेक्शन जनरली 1.5 से 2% आ रही है, तो क्या आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है जी, कल 17 जुलाई तक, 16 जुलाई तक तो मेरा 1.5 से 2% रिजेक्शन आ रहा था, पर मैंने आज रात को कोई वहां स्विच लगा दिया जिससे वो सीधा सीधा 0.1% हो जाएगा। तो ये ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है कि अक्रेंस भी आपकी एकदम से कम हो जाए। हाँ, इसमें एक पॉसिबिलिटी है, अगर आपकी सीएफटी की ब्रेनस्टॉर्मिंग में कोई ऐसा पोकायोके आपने डिजाइन कर लिया जो प्रिवेंटिव पोकायोके है, और अगर वो आपने लगा दिया है तो अक्रेंस ओवरनाइट भी चेंज हो सकती है। पर अदरवाइज अगर कोई आपका पोकायोके नहीं लगा, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कोई 1-2 दिन के अंदर वहां पर पोकायोके नहीं लगाया, तो वो अक्रेंस भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ही चेंज हो सकती है, ओवरनाइट नहीं चेंज हो सकती। तो कहां गुंजाइश रह जाती है आरपीएन को नीचे लाने की, वो गुंजाइश रह जाती है डिटेक्शन मेथड में। हाँ, डिटेक्शन मेथड में अगर आप बिल्कुल नहीं चेक कर रहे थे, आप कहते हैं जी पहले हम सैंपलिंग बेसिस पर चेक करेंगे, एक किसी जगह पर 100% चेक करेंगे, या किसी जगह पर वैलिडेशन वाला पार्ट इन्वॉल्व कर देंगे, प्रोसेस वैलिडेशन का, और अगर वहां पर पोकायोके लग सके फिर तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अगर हम पोकायोके इंस्टॉल कर देंगे तो उससे हमारी अक्रेंस का पर भी इंपैक्ट आएगा और हमारे डिटेक्शन के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा। और अगर वो प्रिवेंटिव पोकायोके हुआ, फिर वो सीधा सीधा हमारे अक्रेंस और डिटेक्शन को सीधा सीधा 1 के ऊपर भी ला सकता है। हमारी अक्रेंस की रेटिंग भी सीधा 1 हो जाएगी इन केस ऑफ प्रिवेंटिव पोकायोके अगर हम लगा पाए, और डिटेक्शन की रेटिंग भी सीधा सीधा 1 आ जाएगी। तो अगर सिवियरिटी 10 भी है तो भी हमारी नेट आरपीएन 10 ही रह जाएगी अगर हम कोई प्रिवेंटिव पोकायोके लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम जो रिकमेंडेड एक्शन वाला पार्ट है उसमें हम ज्यादा सिवियरिटी के ऊपर तो वर्किंग नहीं कर सकते, लेकिन जो हम वर्किंग कर सकते हैं वो किस चीज के ऊपर कर सकते हैं, वो कर सकते हैं ऑन अक्रेंस या डिटेक्शन, मोर ऑन डिटेक्शन, क्योंकि अक्रेंस के ऊपर भी ओनली वर्किंग जो पॉसिबिलिटी है वो है ओनली थ्रू पोकायोके, हम एकदम से उसको रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर डिटेक्शन में हम वर्किंग करें तो डिटेक्शन में 10 से 9, 10 से 6, 7 तक लाया जा सकता है। हाँ, अगर पोकायोके आपको कोई समय में आ गया प्रिवेंटिव वाला या डिटेक्टिव वाला, तो आपकी रेटिंग 1 या 2 में जा सकती है। इस तरीके से जो आपका आरपीएन वाला पार्ट है वो काफी हद तक नीचे लाया जा सकता है। सो दिस वाज ए ब्रीफ अबाउट दी एफएमईए पार्ट की, जो आप एफएमईए करते हैं, कोर कंसेप्ट है फेलियर मोड एंड डिफेक्ट एनालिसिस प्रोसेस एफएमईए फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यहां तक मैं जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया इट वाज प्योरली ऑन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो हम प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं। अब यहां मैं एक चीज और हाईलाइट करना चाहूंगा, ओके, तो यहां मैं एक चीज और हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो हम प्रोसेस एफएमईए तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए या एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए रेफर कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जो आमतौर पर ओवरलुक रहती है, वो जो हम आमतौर पर नहीं करते वो है टूलिंग डेवलपमेंट। आपने कोई फोर्जिंग डाई बनानी है, आपने कोई मोल्ड बनाना है, प्लास्टिक मोल्ड बनाना है, कोई जिग्स फिक्सर्स बनाने हैं, तो जो भी आपने ऐसी टूलिंग्स डेवलप करनी है, उन टूलिंग्स की प्रोसेस का हम एफएमईए नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई टूलिंग डेवलप करनी है, फोर्जिंग डेवलप करनी है या जिग फिक्सचर बनाने हैं, मैं एग्जांपल फोर्जिंग का ले लेता हूं कि फोर्जिंग में अगर आपने सबसे पहले क्या होगा, आप पे कोई ब्लॉक मंगाएंगे या लेंथ मंगाएंगे या कट लेंथ मंगाते हैं ब्लॉक की, उसकी केमिकल कंपोजिशन चेक करेंगे,
वहां पर फेलियर मोड हो सकता है। फिर उसके बाद आप उसकी कटिंग करते हैं, अगर आपने लेंथ मंगाई है तो उसकी लेंथ कम ज्यादा ना कट जाए ब्लॉक की, वो एक फेलियर मोड हो सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, आप उसकी कोई वी कटिंग करेंगे जिसको हम डबटेल कटिंग कहते हैं, उसमें जो आपको टेपर एंगल रखने, जो डायमेंशन रखनी है, वो अगर प्लस माइनस हो जाए तो वो एक फेलियर मोड हो सकता है। फिर उसके बाद आपकी जो आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग करते हुए जो आपने डिजाइन बनाया उसकी जो डेप्थ रखनी है, डेप्थ कम ज्यादा हो गई, लेंथ कोई कम ज्यादा हो गई, ये जो पार्ट हैं, ये सारे पार्टिंग लाइन जहां रखनी है वहां ना बन के गलत बन गई, ये सारे पार्ट हैं जो टूलिंग जब आप डेवलप कर रहे हैं उसके दौरान होते हैं। और हम आमतौर पर टूलिंग की प्रोसेस का प्रोसेस एफएमईए नहीं करते। सो जो भी आप टूलिंग डेवलप कर रहे हैं, चाहे वो फोर्जिंग डाई बना रहे हैं, जैसे आपने प्रोसेस एफएमईए प्रोडक्ट का किया है, उसी तरीके से टूल रूम की टीम को इन्वॉल्व करते हुए साथ में यहां पर जो सीएफटी होगी उसमें मेन मेंबर्स टूल रूम के होंगे। जब हम टूलिंग डेवलपमेंट की बात करेंगे तो उसमें ठीक है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर्सन वुड बी ए पार्ट ऑफ दैट सीएफटी, क्वालिटी फंक्शन वुड बी ए पार्ट ऑफ दैट सीएफटी, प्रोडक्शन पर्सन वुड आल्सो बी ए पार्ट ऑफ दैट सीएफटी। लेकिन टूल रूम की जो मेन टीम है वो पूरी की पूरी उस सीएफटी का पार्ट होना चाहिए जो टूलिंग डेवलपमेंट का पीएफएमए करने जा रही है। सो जिस तरीके से हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोडक्ट का प्रोसेसेस को स्टडी करते हुए कंप्लीट वर्किंग करते हैं, रिस्क प्रायोरिटी नंबर सीवीआरटी डिटेक्शन देते हुए, उसी तरीके से टूलिंग डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है उसके ऊपर भी हम उसकी सारी प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए हमें वो टूलिंग की प्रोसेसेस का भी प्रोसेस एफएमईए करना चाहिए। ये जो पार्ट है अगर हम कर लेते हैं तो उससे काफी हद तक जो एफएमईए का हमारा इंटेंशन होता है वो मीट होता है। और हमारी जो इंटेंशन एफएमईए करने की रहती है वो आमतौर पर इंटेंशन एक ही होती है, फर्स्ट टाइम सैंपल ओके। दिस इज द कोर इंटेंशन ऑफ एफएमईए कि हमने जब भी कोई सैंपल डेवलप किए वो फर्स्ट टाइम सैंपल ओके हो। नहीं तो आमतौर पर क्या होता है, हमारे को कई बार बीच में बहुत सारे मल्टीपल ट्रायल्स, डाई बनाई, कोई प्रॉब्लम आई दोबारा करना पड़ा, कोई प्रोसेस की, ट्रीटमेंट की, फलाना किया, ठीक नहीं हुआ, दोबारा करना पड़ा। तो जो काम हमारे को दोबारा करने पड़ते हैं वो ना हमारे एंड पर करने पड़े, हम जब कंपोनेंट यहां से डेवलप करके कस्टमर को सैंपल भेजें वो फर्स्ट टाइम सैंपल ओके हो, किसी भी ड्यूरिंग दीज प्रोसेसेस कहीं पर भी कोई फेलियर ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए, ये इंटेंशन रहती है हमारी एफएमईए एक्सरसाइज करने की करते हुए। सो इस इंटेंशन को अगर मीट कर पाएंगे तो अगर हम दोनों जगह करते हैं, टूलिंग डेवलपमेंट के में भी करते हैं और प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट प्रोसेसेस हैं उनके ऊपर भी करते हैं, तो हमारा जो एफएमईए का इंटेंशन है वो मीट होता है। तो एज एक्सप्लेन टू यू अर्लियर आल्सो, ये एफएमईए काफी वाइड सब्जेक्ट है। वी आर प्लानिंग की जैसे ही कोविड सिचुएशन थोड़ी नॉर्मलाइज होती है हम एक फुल डे सेशन ऑन एफएमईए प्लान कर रहे हैं जिसमें काफी डिटेल में हम पूरी एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था एफएमईए इज ए वेरी वाइड सब्जेक्ट। उसको 1 घंटे 1.5 घंटे में जो उसको समझाना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू जस्टिस इन डूइंग इट इन 1 और 1.5 आवर। बट स्टिल मैं जहां तक समझता हूं कि आपको ओवरव्यू के तौर पर एफएमईए के बारे में जनरल एक नॉलेज जरूर होगी कि एफएमईए बेसिक कंसेप्ट क्या है, कैसे करना है, इसकी क्या इंटेंशन रहती है, आरपीएन क्या होता है, सीवीआरटी एक्रेंस डिटेक्शन की रेटिंग कैसे देते हैं। तो ये जो पार्ट है ओवरव्यू के एंगल से आई होप कि आप सबको इसमें कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। As far as this session is concerned, I would like to thank CASU and Mr. Robin and Mr. Sanjay Bhatia from Sangeeta Steel Corporation कि जिन्होंने फिर ये हमें मुझे एक मौका दिया आप लोगों से इंटरेक्शन करने का, अपना एक एक्सपीरियंस नॉलेज शेयर करने का। आई होप अगर कुछ परसेंट इनपुट्स अगर आपको इससे मिले होंगे तो वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज प्रोसेसेस एंड टूलिंग डेवलपमेंट, जिससे आपको इसमें डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। मैं यहाँ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो हम फुल डे प्लान कर रहे हैं कोविड के बाद, कोविड सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद एफएमईए का सेशन, उसके लिए जो आज के पार्टिसिपेंट्स हैं इनमें से अगर किसी की कोई ऐसी इंटरेस्ट बनता है कि हम जो फुल डे सेमिनार अटेंड करना चाहते हैं एफएमईए का जो सेशन प्लान होगा, वो अगर आप अपना इंटरेस्ट रेज करना चाहें तो मिस्टर रॉबिन है, उनसे आप शेयर कर सकते हैं कि हमारा इंटरेस्ट है जो फुल डे सेशन हो उसमें भी इंटरेस्टेड है वो पार्टिसिपेट करने के लिए। दैट डेफिनेटली वुड बी ए पेड, वो पेड होगा जो फुल टाइम सेशन प्लान करेंगे।
we can plan on that. Let us decide. अगर अगले 10-15 दिन तक सिचुएशन हमें लगा कि स्टिल नॉर्मल नहीं हो पाई है, तो वी कैन प्लान इन 4 डिफरेंट सेशन ऑफ 2 hours ईच. कुछ ऐसा भी प्लान किया जा सकता है, बट दैट प्योरली विल डिपेंड ऑन कि आप जैसा इंटरेस्ट शो करते हैं आगे के सेशन के लिए, वही एक बेसिस बनेगा कि अगर ये आपको लगता है कि अगर 1-1.5 घंटे में ओवरव्यू क्लियर हुआ है, तो हम जो फुल डे सेशन या वो 8 hour सेशन करेंगे इन 4 डिफरेंट पार्ट्स जो है 2 hours ईच, तो वो यूजफुल तभी हो पाएगा अगर आपका इनपुट ऐसा लगता है कि हमें आज के सेशन से कोई यूजफुल इनपुट्स मिले हैं. That will depend upon your feedback to Mr. Robin, what you share. I'm thankful to you all for listening me very patiently, devoting time for this session. Thank you, CISU, again for conducting this session. Thank you very much.